For latest updates and short audio clips, follow us on Instagram, Reading the Author. Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Guys, today we have Dr. Raj Kumar Sharma sir with us, and he's the author of The Art and Science of Sales. Thank you so much, sir, for coming on our show. It was my honor to have you on my show today. Hello, Gaurav. Thank you very much for inviting me, and it's my pleasure too to be on your show. Thank you very much. Appreciate. Likewise, sir. So, sir, before we proceed in the episode and know much more about your life and everything related to your book, I would request you to please introduce yourselves ताकि हमारे listeners आपके बारे में कुछ और जान सकें. And moreover, do share, sir, कि आपने ये book लिखने की journey कैसे start की. Yes, definitely. So, Gaurav, I've been in the sales industry for almost 40 years, and I have worked with companies like Advanced Micronic Devices. I started my career with this company in 1984, and since then I've been in the industry, then worked with Tata Consultancy Services, Microsoft Corporation, and NTT Limited. These are the major organizations. I had a few smaller stints also during this journey. And on my education, I was a science, graduate. Then I did my post-graduation MSc in physics. Post that, during my working career, I did 2 MBAs. One in marketing, the other in IT operations. Post that, I completed my MPhil and then did my PhD in management. Yeah, so that's been, and I'm still continuing my education journey with a few more additional interest in law. I hope I should continue and acquire education as I keep growing, that's my philosophy. Yes. So great, sir. Okay, so sir, how did you started writing? कब आपने सोचा कि नहीं अब book लिखते हैं? Okay, I would go back about 5 years, okay? And that's the time when I almost reached, the peak of my career. My last company was NTT Limited, where I was heading the India operations for NTT Limited in Delhi. And that's when, after working with so many sales people, I realized that, in this industry, especially in sales as a career, people just jump in without any basic fundamental knowledge about what sales is and how you should make a career into sales. People just join, and I found that almost 80% of the sales people struggle to meet their targets. Only 20% who follow the basic fundamentals and have the basic knowledge about what sales is are successful. And it's a big challenge, and the practical aspect is never taught anywhere, unfortunately, and all the knowledge that people like me acquire during our careers, just go with us. So I thought this knowledge must be shared with people, and hence I thought of starting an initiative under the umbrella called Sales Heroes. And the objective was to share knowledge, and there's nothing better than book because it stays with you. It's not a temporary thing. You can always refer it, a book anytime, and that's where I started off, writing down a book. And the first book which I wrote was The Art and Science of Sales in English, which came out. After writing this book, I got a lot of requests from my Hindi speaking friends, and they wanted that this book be written in Hindi as well, and I somehow accepted that and came out with the second book, which is a translation of this book, and it's called Sales Ek Kala Aur Vigyan.
Yeah. And Gaurav, you will be surprised to know that the Hindi book volumes are at least 4 times, 5 times higher than English book volumes, actually. Wow. Yeah, yeah, Okay, that's so great. That's so amazing. yeah. Oh, you know what I feel, sir, that हिंदी में ना लोग ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं पर्सनली. Yeah, I think so. I think हमारे country में mother language plays an important role. हिंदी True. में जो चीज आप आसानी से समझ सकते हैं, हर इंसान नहीं समझ सकता. I think that's the key reason, that people are not real. And secondly, there are very few writers in India who are writing in Hindi. Brian Tracy, all these are American. They live outside the country. What do they know about our Indian culture? True. Unfortunately, people just buy their books and not really helps, in building your career, because every region, every 50 kilometers, you find a change in the culture, in the language, in the way people behave. True. So you got to have the Indian knowledge, and that's what comes out, from people like me. And I think it's a great opportunity and service to the upcoming sales fellows, Definitely. Yeah, so In fact, I realized this, yes. Yeah. In fact, in our region, like in Uttar Pradesh, East, and in Bihar, there's a saying as well कि कोस पे बानी बदले and 3 कोस पे वानी. So Yeah. it's like हर एक कोस पे I guess 3 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स होता है, वहाँ पे पानी चेंज हो जाता है, एंड हर 9 किलोमीटर्स के बाद जो आपकी बोली होती है वो भी थोड़ी चेंज हो जाती है. तो ये एक है. और बिल्कुल सही बात है सर कि अगर जो चीज़ आप जिस चीज़ में आप हो नहीं ना, उसको आप कितना भी अज्यूम करके लिख लीजिए, वो ऑथेंटिसिटी, वो जो आप एक कहते हैं ना कि जेन्युइन जो चीज़ आपको फील हो जाती है कि नहीं ये एकदम रॉ चीज़ है, वो आप कभी नहीं कर पाएंगे. बिल्कुल. सो सर, लाइक जैसे आपने बताया कि जो आपकी ये बुक है द आर्ट एंड साइंस ऑफ सेल्स, इसको आपने हिंदी में ट्रांसलेट किया, एंड इसने एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक वो लेके आया और काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर हो गई. सो ये थॉट कब आया कि नहीं इस बुक को हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं? सो गौरव, मैंने जैसे बताया कि जब मैं बुक लिख चुका था इंग्लिश वाली, और इसका प्रमोशन जब चल रहा था, तो काफी लोगों ने मेरे से सवाल पूछे कि क्या ये बुक हिंदी में है, या क्या ये बुक मराठी में है. there are many, these are 2 special requests I keep getting: मराठी, हिंदी एंड गुजराती लैंग्वेज. ओके, ये 3 रिक्वेस्ट. तो मैंने कहा गुजराती तो मेरे को नहीं आती है, ना मेरे को मराठी आती है, उसके लिए मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी. सो हिंदी मुझे आती है, तो मैं क्यों ना पहले हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके रिलीज करूं. जो लोग सीखना चाहते हैं सेल्स के बारे में, एटलीस्ट हिंदी बेल्ट के लोग तो सीख ही सकते हैं इमीडिएटली. सो दैट इज वेयर मेरे को लगा कि नहीं, हमारे बी क्लास सिटीज और सी क्लास सिटीज में ज्यादा बिजनेस हिंदी में ही होता है, और इसके लिए मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए. और तभी मैंने इसको ट्रांसलेट करना शुरू किया, और इस बुक को मैंने जल्दी से जल्दी रिलीज करने की कोशिश करी. और सरप्राइज मेरे लिए, इट वाज अ स्वीट सरप्राइज कि हिंदी की डिमांड बहुत ज्यादा है. So true. So जिन लोगों को भी अगर हिंदी में बुक पढ़नी है ना, तो वो जाके सर्च कर सकते हैं सेल्स एक कला और विज्ञान, तो सर की बुक आ जाएगी. जरूर पढ़िएगा, जरूर खरीदिएगा. मोरओवर सर, लाइक जैसे कि नाम तो बहुत कुछ जस्टिफाई कर रहा है कि द आर्ट एंड साइंस ऑफ सेल्स एक कला और विज्ञान, बट स्टिल अगर जो हमारे लिसनर्स हैं, अगर ये लेट्स अज्यूम कि हम आपसे क्या इनसाइट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि मतलब क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बुक से, अगर ये जानना चाहें, खरीदना चाहें, तो कुछ अगर आप इनसाइट शेयर कर पाएं. हाँ, सो गौरव, ये किताब भी जो है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड है. ओके, तो अभी ये जो बुक मैंने बताई, ये सिर्फ पहला पार्ट है. मेरे हिसाब से सेल्स जो है वो एक ट्रांजैक्शन नहीं होती है. बहुत लोग इसको डिफाइन करेंगे, हाँ भाई सेल्स क्या है, ट्रांजैक्शन, मैंने माल दिया और पैसे ले लिए तो ट्रांजैक्शन हो गई. बट ये इतना सिंपल नहीं है. मेरे हिसाब से सेल्स एक किसी इंसान की जरूरतों को पूरा करना है, और उसके परिवार में, उसके चेहरे पे, उसके कैरियर में, जस्ट
जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए वो किताब अपनी सामान खरीद रहे हैं, उसके थ्रू उसकी लाइफ में, प्रोफेशन में, फैमिली में खुशियां लाना है, दैट इज सेल्स। अगर वो खुशी नहीं आती है तो वो सेल्स नहीं कहलाएगी, वो एक जबरदस्ती आपने ट्रांजैक्शन पूरी कर दी लेकिन कस्टमर खुश नहीं हुआ। तो ये सब के लिए सेल्स को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है, जिसको हम साइंस भी कहते हैं और दूसरा भाग है कला। जो पहला पार्ट है साइंस, वो इस किताब में है जो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। और साइंस का मतलब क्या होता है? एक लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और उस प्रोसेस को आप कट शॉर्ट नहीं कर सकते, वो प्रोसेस पूरा फॉलो करना ही पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक किसान का जीवन लें तो किसान क्या करता है? फसल जब तक कटती है तो स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस करता है, लेकिन शॉर्टकट नहीं होता है। खेत जोतता है, बीज लगाता है, पानी देता है, फर्टिलाइजर देता है, उसके बाद इंतजार करता है कि फसल बढ़ रही है, उस दौरान वो उसको कीटनाशक भी लगाता है ताकि कीड़ों से बचा सके, और अंत में फसल तैयार। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप शॉर्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही दूसरे की साइकोलॉजी को समझना, उसके साथ इमोशनली कनेक्ट होना, बॉडी लैंग्वेज को सीखना, बोलना कितना है, सुनना कितना है, ये एक कला है। तो ये जो दूसरा भाग अब मैं बहुत जल्दी रिलीज करने वाला हूँ, ये किताब मेरी आने वाली है बाजार में। इसका नाम होगा द आर्ट ऑफ सेल्स, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सेल्स। एक कला और विज्ञान के अंदर ही भाग 2 आएगा, सेल्स द आर्ट ऑफ सेल्स, सेल्स एक कला। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में मैंने डिवाइड करी है। पहले पार्ट में जो साइंस के ऊपर है, इसमें 10 चैप्टर हैं, और इसमें मैंने वो सारी चीजें कवर करी हैं कि आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, आप कस्टमर से मीटिंग के लिए कैसे तैयारी करते हैं, सेल्स मॉडल्स क्या होते हैं, सेल्स प्रोसेसेस क्या होते हैं, सेल्स स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे होती है, सेल्स क्लोजर कैसे करना है। ये सारे एस्पेक्ट्स मैंने 10 चैप्टर्स में इसमें कवर करे हैं। इसके बाद जो आएगी उसमें आर्ट के ऊपर और 8 चैप्टर मैं उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, और अलग अलग मुद्दों पे हम उसमें बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से सेल्स जो है वो एक कला और विज्ञान का मिश्रण है, इसलिए इसका नाम मैंने ये रखा। और सारे फंडामेंटल इन 2 किताबों से किसी भी सेल्स पर्सन के क्लियर हो जाएंगे। डेफिनेटली, इनफैक्ट यू नो व्हाट आई वाज इंस्टेंटली फीलिंग कि जैसे आपने हिंदी में भी रिलीज की और इंग्लिश में भी, तो आजकल जैसे व्हेन इट कम्स टू इवन इंस्टाग्राम एज वेल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे शहरों में हैं, या फिर यू नो उनके पास उतनी रीच नहीं है सेल्स के, उनके पास उतने लोग नहीं है कि वो उनकी मार्केटिंग कर पाए, तो वो भी इन सारी चीज़ों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे हम ऐसे यू नो पेजेस या कुछ देखते हैं कि लोग अपने घर पे बना बना के कुछ बेच रहे हैं अमेजोन पे, यहाँ वहाँ, या फिर पर्सनली लोग डायरेक्ट डीलिंग भी कर रहे हैं कस्टमर से। तो डेफिनेटली ये सेल्स एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाला है आने वाले टाइम में, अभी भी इनफैक्ट ये बहुत बड़ा कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सो सर, लाइक यू नो जैसे बहुत सारे ऑथर्स की एक यू नो पर्सनल आइडेंटिटी या फिर वो कुछ एक स्ट्रैटेजी के तहत चलते हैं कि ठीक है मेरी बुक ना ऐसी ऐसी निकलेगी, तो मेरी जो मार्केट में इमेज है, बुक इंडस्ट्री में जो इमेज है वो इस टाइप की होनी चाहिए। सो व्हेन इट कम्स टू यू, आपने कभी सोचा है कि लेट्स से आज से 1-2 साल बाद अगर कोई आपकी बुक देख रहा है, क्योंकि इट्स बुक बाय डॉक्टर राजकुमार शर्मा, तो उसके माइंड में वो सडन थॉट क्या आना चाहिए कि ठीक है अगर राज सर की बुक है तो ऐसी होगी, यू नो दैट फर्स्ट क्लिक किया, अच्छा ठीक है सर की बुक है तो मुझे ये सीखने को मिलेगा, ये फीलिंग आएगी, ये इमोशन आएगा। कभी कुछ सोचा है सर इस बारे में? ये बहुत अच्छा सवाल है गौरव, और मैं आपको ये बताऊं कि मैं एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ इस किताब के माध्यम से। किताब कोई खरीदता है तो उसके पास हमेशा रहती है, और इसको एक टेस्ट करने के लिए मैंने अभी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन किया था कुछ समय पहले, और उसमें लोगों ने जो मेरे को फीडबैक दिए वो बहुत ही पॉजिटिव थे कि सर आप जो सिखा रहे हैं वो ये बड़े बड़े लोगों, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने सभी बड़े बड़े लोगों का नाम लिया कि वहां पे तो सर वो बेचने आते हैं, हमें 10,000 का पैकेज टिका के चले जाते हैं और हमें बोलने भी नहीं देते हैं। आप जिस तरीके से फील्ड नॉलेज सिखा रहे हैं वो हमें कहीं देखने को नहीं मिली। हमने बहुत बड़े बड़े
जाने माने नामों की वेबिनार्स और सेमिनार्स अटेंड करे हैं, तो वो चीज जो मैं उनसे यही सवाल किया, मैंने कहा सर ब्रायन ट्रेसी और XYZ इन लोगों ने इंडिया में कितनी सेल्स करी है, पहले आप वो तो समझिए, तो आपको सेल्स क्या सिखाएंगे। मैंने 40 साल हार्डकोर सेलिंग खुद करके मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ, और वो सारी नॉलेज मेरे पास है, तो मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो एक रियल फील्ड नॉलेज आपको दे रहा हूँ। वही मेरी बुक्स जो पढ़ेगा उसको ये समझ में आएगा कि बेचना कैसे है, इसके फंडामेंटल क्या होते हैं, ये रियल नॉलेज है। और मेरी इमेज जो मैं अपने आप को देख रहा हूँ, वो इस कम्युनिटी को बिल्ड करके मैं अपने आप को, एंड आई वांट टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ एज ए रियल सेल्स कोच एंड a trainer who will educate community on how to sell, and organizations, smaller companies who want consulting from me, these are the people whom I can help, I can contribute, and मेरा ऑब्जेक्टिव कोई पैसा बनाना नहीं है यहाँ से। हाँ, मैं अपने एक्सपेंसेस जरूर रिकवर करूंगा, लेकिन दूसरों की तरह मैं कोई बिजनेस नहीं बड़ा बना रहा हूँ, मैं सिर्फ नॉलेज बड़ी बना रहा हूँ। यहाँ पे मेरा उद्देश्य ये है। तो बड़ी नॉलेज सेल्स में अगर चाहिए तो राजकुमार शर्मा के पास आइए। That is what I will be. This can also work as a tagline, sir. Yes. Okay. Yeah. So, sir, what I personally feel that after the first lockdown was over, numbers of author got increased very rapidly. Like, एक boom देखा इस book industry ने. So when it comes to you, like, आप तो इस बुक इंडस्ट्री के नहीं है, आपने जस्ट अभी एक दो बुक रिलीज की इसमें, तो आप जब इस पूरे प्रोसेस में थे, बिकॉज राइटिंग अ बुक एंड पब्लिशिंग और ये सारी चीजें जो होती हैं, ये कंप्लीटली डिफरेंट चीजें होती हैं। लाइक 50% ही होती है राइटिंग, मेरा ये मानना है, 50% तो डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिशिंग, ये सारी चीजें होती हैं। सो व्हेन इट कम्स टू यू पर्सनली, आपको कैसा लगा कि कितना मुश्किल है अपनी बुक को स्टैंड आउट कराना इस मार्केट में, बिकॉज द मार्केट इज वेरी फ्लडेड एज ऑफ नाउ। तो आपने क्या क्या चीजें फेस की, या फिर आपने क्या क्या मुश्किलें फेस की, कैसे आप अगर शेयर करना चाहें तो? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है गौरव, बिकॉज बुक लिखना बहुत आसान है, बुक को लोगों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा ही मुश्किल और डिफिकल्ट प्रोसेस है। और मेरे साथ भी ये सब चैलेंजेस आए हैं। व्हेन आई रिलीज्ड द फर्स्ट difficulty is finding a publisher. Who is the right publisher? Publishing भी आज की डेट में हजारों लोग पब्लिशिंग में आ चुके हैं, because the whole process has changed. आप ऑनलाइन रिलीज कर देते हैं, इट्स वेरी इजी, डिजिटल प्रिंटिंग, एवरीथिंग इज डिजिटल नाउ। सो बहुत आसान तरीका हो गया है। और मेरे को ये मालूम है बिकॉज माय फादर वाज आल्सो एन ऑथर, एंड मैं 20 साल पहले की उनकी जो प्रोसेस था उससे अगर मैं कंपेयर करता हूँ आज की डेट में, तो सी चेंज। तो एक सही पब्लिशर ढूंढना इज फर्स्ट डिफिकल्ट टास्क। सेकंड डिफिकल्ट टास्क इज बुक तो रिलीज हो जाती है, इट्स इजी, बट बुक पहुंचेगी कैसे लोगों के पास, कैसे पता चले? तो इसके लिए मैंने फिर अपना ही प्लेटफॉर्म जो मैंने रेस किया था, मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई बुक तो है लेकिन किसको मालूम। So I started my own social media campaigns, and although मेरी बुक Amazon, Flipkart पे अवेलेबल है, और आज की डेट में you will be happy to know there are 13 people or 14 people selling my book on Amazon. Wow. So it's not the publisher alone. Amazon पे 13 लोग 14 लोग बेच रहे हैं, और मैं सेल्स हीरोज के प्लेटफॉर्म पे अपनी डायरेक्ट ऑटोग्राफ बुक्स बेचता हूँ। जो मेरे से खरीदेगा मेरे ऑटोग्राफ के साथ उसको किताब पर्सनलाइज्ड बुक मिलेगी with the name and my message and my signatures. So I started doing it on my own because I come from sales. I can't accept defeat like that. Hey, sales so kitab to likh di. So I said, yeah, what is the point? If I am not able to sell my own book, then what? And the book is on so, sales. Yes.
So I took it on my own and I started. After the lockdown, I signed up with the distributors for offline distribution in various stores across the country, and that's also now working. During lockdown, yes, it was purely online, but I'm seeing the momentum since I have started on my own. So मेरी रिकमेंडेशन हर ऑथर को ये है कि किताब लिखने से ही किताब बिकनी शुरू नहीं हो जाती. You have to put in your own efforts. So true. Okay, so sir, as of now, like, what's your current writing schedule? आप जैसे आपने बताया कि एक और जो बुक आ रही है, तो आप अभी पर डे आप कुछ आवर्स डेडिकेट करते हैं अपनी राइटिंग को, या इट्स लाइक रैंडम, कभी कोई थॉट आया तो बैठ के लिख लिया, फिर बाद में बैठ के उसे एलैबोरेट कर रहे हैं? हाउ डज इट गोज विथ यू? So एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है पहले, गौरव, कि आप किताब में लिखना क्या चाहते हो, और फिर हर चैप्टर को, हर टॉपिक को ब्रेक डाउन करना पड़ता है. इस चैप्टर में हम ये 10 टॉपिक मेंशन करना चाहते हैं या इनके बारे में लिखना चाहते हैं. तो वो एक बार जब फ्लो शुरू होता है तो आइटरेशंस बहुत सारी होती हैं, गौरव. एंड ऑल्दो मेरी किताब कम से कम 4 महीने से रेडी है, लेकिन उस पे आइटरेशन होती जाती हैं. सो एवरी डे यू हैव टू स्पेंड टाइम. और जब तक आपको फुल सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता है कि हाँ मैंने ये सब चीजें कवर कर दी हैं और सफिशिएंट एग्जांपल्स भी दे दिए हैं, तभी आप उसको रिलीज करें तो बेहतर होगा. तो मुझे हर रोज उसके ऊपर टाइम स्पेंड करना पड़ता है, गौरव. मैं बार बार उनको देखता हूँ और बार बार उसके ऊपर नया थॉट आता है, नया आइडिया जो मैं शायद मिस कर गया ऐड कर दो. सो दैट इज हाउ द बुक ग्रोज ओवर टाइम. ओके, सो आपने अगर बुक कंप्लीट कर भी ली है बेसिक स्ट्रक्चर, even then I think you have to spend 3-4 months to find just to refine and keep adding or deleting something, so it takes time. So 5-6 महीने आपको लगाने पड़ते हैं पूरे प्रोसेस में, तब जाके आपका कुछ फाइनल प्रोडक्ट बुक के फॉर्म में तैयार होता है. Okay. So sir, as of now we have talked about your book, about your upcoming project and everything. Now coming to you personally, basically, like कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या नहीं लगी. So my first question is कि जब आपने ये बुक लिखी, जो आपकी पहली बुक है, तो उसमें what was the most difficult part to write? Like आप बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत चीज़ें आप खुद समझ लेते हैं, बट जब किसी और को समझाना होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है वो चीज़. बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं. एंड मोर ओवर सर, आपका इसमें बेस्ट पार्ट क्या था लिखने वाला, कि मतलब ये चीज़ मुझे लिखने में बड़ा मजा आया, फिर ये वाली चीज़ में थोड़ी सी मुझे इशू हुई, ऐसा कुछ था? हाँ, सो गौरव, मैं बेसिकली क्या करता हूँ, जब चैप्टर्स लिखता हूँ तो मैं उसको कोरिलेट करता हूँ अपने पर्सनल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, कि इस सिचुएशन में मैंने कहाँ पे कैसे मैनेज किया था. ओके, और जो मैंने रियलाइज करा है कि जो मेजर प्रॉब्लम लोगों को होती है वो प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं. वो पहली एक चीज है. तो ये इंश्योर करना कि लोग प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करेंगे एक डिफिकल्ट एस्पेक्ट है सेल्स के अंदर. दूसरा, लोगों को आपने कहा कि मेरे को कहाँ पे डिफिकल्टी, मेरे को वैसे डिफिकल्टी तो नहीं हुई, बट सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग होता है वो होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला पार्ट. जब सेल्स पर्सन पूरी मेहनत कर लेता है और ऑर्डर के लिए एक्सपेक्ट कर रहा होता है अब मेरे को ऑर्डर मिलेगा, लेकिन ऑर्डर नहीं मिलता, उसको ऑब्जेक्शंस मिलते हैं कि आपके प्राइस तो बहुत ज्यादा है, या आपके प्रोडक्ट में ये ABC फीचर है ही नहीं, समझ गए, या मेरे को अभी जरूरत ही नहीं है, मेरे पास तो ऑलरेडी सब कुछ है. तो इस तरह के ऑब्जेक्शंस, बहुत तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं. या कंपनी के ऊपर भी ऑब्जेक्शंस, आपकी कंपनी की क्या स्टैंडिंग है मार्केट में, मैं आपसे क्यों खरीदूं, ठीक है. तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत ही समझदारी से मैनेज करना आना चाहिए. तो इसमें काफी समय लगता है लोगों को पहले लिखने में और समझाने में भी, कि क्योंकि ये साइकोलॉजी से खेल रहे हैं हम. It is not just a process, but it is also part of the psychological handling of customer. क्योंकि ऑब्जेक्शन तभी आते हैं जब आप
कस्टमर को वैल्यू नहीं शो कर पाए हैं अभी तक, कि उससे उसको क्या फायदा होने वाला है। बिल्कुल। अगर मुझे कोई फायदा हुआ मैं तभी खरीदूंगा ना, मैं तो अदरवाइज नहीं खरीदूंगा कुछ भी। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने आपको क्या फायदा दिया वो मैसेज नहीं पहुंच पाया तो ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, लिखने में भी और समझाने में भी। और एक जो शुरू में प्रोसेस होता है कि कस्टमर से मीटिंग हासिल करना, पहली मीटिंग, वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कोल्ड कॉलिंग तो आज की डेट में इतने सारे लोग करते हैं, लेकिन आप तो टाइम सबको नहीं देते हो। तो वो भी एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, इनिशिएशन ऑफ द सेल्स कॉल और जो सेल्स के एंड में प्रोसेस होता है। ये दो बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स है मेरे हिसाब से। और हर सेल्स पर्सन को ये दो चीजें समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट होते हैं सेल्स में, और इनको लिखने और समझाने में बहुत पेशेंस चाहिए। ओके ओके। सो सर, लाइक माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू इज लाइक, आपको जब पता चला कि टुमारो योर बुक विल बी रिलीज्ड, सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम, लाइक ऑन दैट पर्टिकुलर ईव, व्हाट वाज गोइंग इन द माइंड? आप स्ट्रेस थे, रिलैक्स थे, एक्साइटेड थे, या फिर यू हैव जस्ट गॉट सम माइलस्टोन्स कि ओके दीस मेनी पीपल नो मी, माय बुक वाज टू बी सोल्ड आउट दीस मेनी कॉपीज? व्हाट वाज गोइंग ऑन इन माइंड? Yeah, it's a moment of excitement, definitely, and stress तो नहीं होता है, because before releasing the book you ensure कि सब ठीक है, everything is in line, and कोई errors तो नहीं रह गए कहीं, तो stress नहीं होता। एक it's a milestone, okay? So I think as we grow in life, हमारे उद्देश्य, हम क्या हासिल करना चाहते हैं, वो बदलता रहता है। जब हम करियर शुरू करते हैं उस वक्त हमें पैसा चाहिए होता है, हमें प्रमोशन चाहिए होती है, हमें अपनी फैमिली बिल्ड करनी होती है, तो उस तरह की हमारी बहुत सारी जरूरतें होती हैं। लेकिन व्हेन यू रीच ए स्टेज वेयर यू हैव अचीव्ड, जब करियर में आप सब कुछ हासिल कर लेते हैं, तो क्या, तो हाँ, मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ देना चाहता हूँ, और वो एक माइलस्टोन ऐसा होता है which gives you lot of happiness, okay? So मैं इस बुक के माध्यम से अगर 1000 लोगों 10,000 लोगों तक पहुंच पाता हूं, तो एक इनडायरेक्ट सेंस ऑफ अचीवमेंट और हैप्पीनेस होती है। सो जब बुक रिलीज होनी थी या हुई, there was a lot of excitement, and मेरा एक ही उद्देश्य था, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहूंचूं अब किताब के माध्यम से। अपने फ्रेंड सर्किल, उनको भी बोला भाई आगे डिस्ट्रीब्यूट करिए, मैसेजिंग करिए, लोगों को बताइए, एड्स दीजिए फेसबुक पे और लिंक्डइन पे, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, एटलीस्ट जान सकें कि ये अवेलेबल है। अब मैंने प्रोडक्ट तो बना दिया, लेकिन मेरी खुशी तो तभी है जब कोई कहता है हाँ मैंने बुक खरीद ली, तो मेरे को एक्साइटमेंट होती है, यस आई हैव रीच्ड दैट हाउस नाउ, ओके, नाउ आई हैव कनेक्टेड विद अ फैमिली। सो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ये, एक फॉर ए ऑथर, जब बुक मार्केट में आती है, और इट गिव्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस। So sir, my last question of this podcast is like, इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद बहुत सारे लोग बुक लिखना चाहेंगे, या फिर उनका वो जो फर्स्ट ड्राफ्ट होगा अभी उनके हाथ में होगा, उनके लैपटॉप में होगा। So what would be your advice for those upcoming authors? मेरी एडवाइस ये है कि फर्स्ट, नंबर 1, don't be in a hurry to release the book, okay? Do your homework properly, keep reading the book, keep spending time, इंश्योर कीजिए कि उसमें कोई चीज मिस नहीं हो गई, कोई चीज की कमी नहीं रह गई। जब आप 10 बार 15 बार अच्छा सा टाइम स्पेंड कीजिए, टाइम स्पेंड करके जब आप सेटिस्फाइड हो फुल्ली, हाँ यस आई एम नाउ फुल्ली सेटिस्फाइड, अगेन गिव इट 10 days टाइम, बिकॉज समथिंग मे कम अप इन योर माइंड। तो टाइम स्पेंड कीजिए, जल्दी में रिलीज नहीं करिए। एंड रिलीज जब आप करते हैं, you are the owner of your product, so don't depend on the publisher. Pick up the reins of your product and social marketing कीजिए।
कीजिए, सोशल मीडिया पे फैलाइए। सो दैट्स इम्पोर्टेंट, अदरवाइज तो बुक फिर वो एक टाइटल बन के रह जाता है, दैट्स इट, यू नो। Okay, so Yeah. that's all for today, guys. I hope you must have enjoyed this engaging and lovely conversation with Raj sir. And if you do, then do follow our podcast, Reading the Author, available on all the leading podcast platforms. And don't forget to buy and read the book. आप जस्ट Amazon पे जहाँ पे सर्च करें डॉक्टर राजकुमार शर्मा बुक आ जाएगी, या फिर आप सर्च कर सकते हैं सेल से कला और विज्ञान हिंदी एडिशन के लिए. When it comes to the English one, you can just search the art and science of sales. बुक आ जाएगी, ज़रूर खरीदें, पढ़ें और अपने जानने वालों के साथ, चाहने वालों से ज़रूर रिकमेंड करें इस बुक को. Thank you so much, sir, for being a guest on our show. It was my honor to host you today. Thank you, Gaurav. It was my pleasure, and thank you to all the listeners. Thank you very much. Appreciate everybody's time. Thank you, sir.